بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں وقار ارشد، آپ کا بایولوجی ٹیچر. آج کا ٹاپک کیا ہے ڈسکس کرنے کے لیے؟ آئیے چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ریکال یور میموری. پریویس لیکچر میں ہم ایکسرسائز ہی کو ڈسکس کر رہے تھے. چیپٹر نمبر 14 ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور چیپٹر نمبر 14 کے اختتام کے بعد ایکسرسائز کے ایم سی کیوز اور لانگ کویسچنز ہم ڈسکس کر چکے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ریلیٹڈ ہے ایکسرسائز میں دیے گئے شارٹ کویسچن سے. شارٹ کویسچنز کیا ہیں؟ یہ مختصر سوالات ہیں جو امتحان میں پوچھے جاتے ہیں اور آبجیکٹو ٹائپ کویسچنز کا پارٹ ہیں. آبجیکٹو ٹائپ کویسچنز آپ کے ایگزامینیشن میں اہمیت کے حامل ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایکسرسائز میں کون سے شارٹ کویسچنز دیے گئے ہیں آئیے دیکھتے ہیں. ایک ایک کر کے ان کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کے جوابات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. فرسٹ کویسچن از Question number 1. Natural and artificial vegetative propagation are methods of asexual reproduction. ہائیلائٹ کر لیجئے امپورٹنٹ ورڈز کو. آرٹیفیشل ویجیٹیٹو پروپیگیشن اور نیچرل ویجیٹیٹو پروپیگیشن، یہ کیا ہیں؟ میتھڈز آف اے سیکشل ریپروڈکشن ہیں ان پلانٹس. جسٹیفائی دا اسٹیٹمنٹ. سوال کنسپچول ہے. آپ کے کنسپٹس کو چیک کرنے کے لیے اس طرح کا سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ نیچرل ویجیٹیٹو پروپیگیشن ہو یا آرٹیفیشل ویجیٹیٹو پروپیگیشن ہو، یہ اے سیکشل ریپروڈکشن کے میتھڈز ہیں پلانٹس میں. اس اسٹیٹمنٹ کو جسٹیفائی کریں، اس فکرے کی وضاحت کریں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ریکال یور میموری. لیکچر نمبر 3 اینڈ 4 میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ویجیٹیٹو پروپیگیشن ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے اندر پودے کا ایک ویجیٹیٹو پارٹ جو کہ روٹ بھی ہو سکتی ہے، شوٹ بھی ہو سکتی ہے، شوٹ میں سٹیم بھی ہو سکتی ہے اور لیف بھی ہو سکتا ہے، اس کو لیا جاتا ہے، مٹی میں دبایا جاتا ہے، اس کی احتیاط کی جاتی ہے، اس کو خوراک اور پانی دیا جاتا ہے، اس کو روشنی اور ٹیمپریچر پرووائڈ کیا جاتا ہے تو وہ ایک مکمل نئے پودے میں تبدیل ہو جاتا ہے. سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ویجیٹیٹو پروپیگیشن خواہ وہ نیچرل وے سے ہو یا آرٹیفیشل وے سے ہو، خواہ وہ بلب، کوم، رائزوم، ٹیوبر یا سکر یا لیف کے ذریعے سے ہو یا وہ انفورسڈ کر کے انسان کی طرف سے کٹنگ یا گرافٹنگ کی صورت میں کی گئی ہو، وہ اے سیکشل ریپروڈکشن ہے. وضاحت کیجیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ اس میں جسٹیفائی کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ایک ہی پیرنٹ انوالو ہے، اس میں فلاور کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، اس میں گیمیٹس کی کوئی فیوژن نہیں ہے، اس میں فرٹیلائزیشن نہیں ہو رہی ہے، اس لیے ہم اس کو سیکشول کی بجائے اے سیکشل ریپروڈکشن ڈکلیئر کر سکتے ہیں. انتہائی آسان کنسپٹ ہے. اس کا جواب آپ یوں لکھ سکتے ہیں: Vegetative propagation is a process in which a vegetative part, either shoot or root of a plant, grows into an entire new plant. Vegetative propagation ایک عمل ہے کہ جس کے اندر پودے کا ایک ویجیٹیٹو پارٹ لیا جاتا ہے. وہ یا تو تنا ہوتا ہے یا جڑ ہوتی ہے. تنے کے اندر پتا بھی ہو سکتا ہے یا اس کی سٹیم بھی ہو سکتی ہے. grows into an entire new plant، یہ گرو کر جاتے ہیں، ڈیولپ کر جاتے ہیں، ان کی نشوونما ہو جاتی ہے اور یہ ایک مکمل نئے پودے میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اور یہ نیا پودا کیسا ہوتا ہے؟ یہ نیا پودا اپنے پیرنٹ پلانٹ جیسا ہوتا ہے. That is an example of asexual reproduction. ہم اس کو اے سیکشل ریپروڈکشن کی ایک مثال ڈکلیئر کر سکتے ہیں. بیکاز، وجہ کیا ہے؟ Because there is absence of fertilization. کیونکہ یہاں پر فرٹیلائزیشن نہیں ہو رہی ہے، نر اور مادہ کا ملاپ نہیں ہو رہا ہے، میل اور فیمیل پیرنٹس آپس میں کراسنگ نہیں کر رہے ہیں، یعنی میل اور فیمیل گیمیٹس کی فیوژن نہیں ہو رہی ہے. اس لیے ہم اس کو اے سیکشل ریپروڈکشن ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ جس میں ایک ہی پیرنٹ سے ایک مکمل نیا جاندار وجود میں آتا ہے. میوسس نہیں ہوتی ہے بلکہ سمپل مائٹوسس کا عمل ہوتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ پہلا سوال تھا، کنسپچول کویسچن تھا اور آپ کے کنسپٹس کو چیک کرنے کے لیے یہ سوال آپ کو امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے. اگر آپ نے لیکچرز کو توجہ کے ساتھ سنا ہے، اگر آپ نے کنسپٹس کو کلیئر کیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کسی بھی قسم کے سوال کا جواب بڑے اچھے انداز میں دے سکتے ہیں. آپ اپنے الفاظ میں سوال کا جواب دے کر پورے نمبر حاصل کر سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگلا سوال کیا ہے شارٹ کویسچنز میں دیا گیا؟ اگلا سوال آئیے دیکھتے ہیں. Dear students, question number 2.
Why do gardeners use the methods of cutting and grafting? इंतहाई सादा सवाल है, लेकिन स्टेटमेंट को उलट फेर करके पूछा गया है। आपसे पूछा जा सकता है, इम्तिहान में किसी तर्ज के फिक्रे में सवाल पूछा जा सकता है। मकसद आपकी तैयारी को जांचना है, आपके कंसेप्ट्स को चेक करना है। सादा सवाल पूछा जा सकता था, बताइए कटिंग के फायदे क्या हैं, बताइए ग्राफ्टिंग के फायदे क्या हैं, बताइए सिग्निफिकेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है। लेकिन स्टेटमेंट को चेंज किया गया, उलट फेर किया गया आपके इम्तिहान के लिए, आपके कंसेप्ट्स को चेक करने के लिए। और सवाल यूं पूछा गया कि गार्डनर यानी माली कटिंग और ग्राफ्टिंग को कलमकारी और पेवंदकारी को क्यों इस्तेमाल करते हैं। आप इसका सादा सा जवाब लिख सकते हैं कि कलमकारी और पेवंदकारी यानी कि कटिंग और ग्राफ्टिंग के कुछ फवायद हैं। इन फवायद को हासिल करने के लिए माली क्या करते हैं, ये तरीके इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं वो कौन से फवायद हैं जिनके हसूल के लिए कटिंग और ग्राफ्टिंग का अमल किया जाता है। नंबर 1, रैपिड ग्रोथ। पहला फायदा ये है कि कटिंग और ग्राफ्टिंग के जरिए से पौधों की नशोनुमा का अमल तेज होता है और सस्ते दामों आप एक ही पौधे से कई नए पौधे तैयार कर सकते हैं, जो कि इकोनॉमिकल भी है और बेनिफिशियल भी है। नंबर 2, प्रिजर्व बेनिफिशियल कैरेक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, कटिंग और ग्राफ्टिंग के इस्तेमाल की वजह से ये श्योरिटी हासिल होती है कि नई आने वाली नस्ल हूबहू अपने वालिदैन जैसी होती है, और वालिदैन अगर अच्छी खसूसियात के हामिल हैं तो नई नस्ल में भी सेम वही खसूसियात, सेम वही कैरेक्टरिस्टिक्स फर्दर ट्रांसफर होंगे और हम उन कैरेक्टर्स को आने वाली नस्लों में हासिल करने में कामयाब होंगे। और वो अच्छे कैरेक्टर क्या हो सकते हैं? वो पैदावार की तेजी हो सकती है, वो मेयार की बेहतरी हो सकती है, वो बीमारियों से मुदाफियत हो सकती है, वो जरासीमों का मुकाबला करने की सलाहियत हो सकती है, वो पैदावार का अच्छा जायका हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, तीसरा फायदा क्या है? तीसरा फायदा आइए देखते हैं। तीसरा फायदा है सीडलेस फ्रूट्स, यानी कटिंग और ग्राफ्टिंग के जरिए से अगर पैदा किए जाएं नए पौधे तो उसमें हमें यह फायदा भी हासिल हो सकता है, हम बगैर बीजों वाले फल तैयार कर सकते हैं। बगैर बीजों वाले फल की मिसाल क्या है? ग्रेप्स भी हैं, सिट्रस फ्रूट भी हैं, जिसमें माल्टा, किन्नू और मौसमी शामिल हैं। अगर अंगूरों में गुठली नहीं होगी, उनका जायका अच्छा होगा, खाने में ज्यादा लुत्फ आएगा। इसी तरह से अगर माल्टा, किन्नू और मौसमी में बीज कम होंगे तो आपको खाने में ज्यादा लुत्फ महसूस होगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, पार्थेनोजेनेसिस इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गिव कमेंट्स। अगेन एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पूछा गया है पार्थेनोजेनेसिस एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है, इस पर तबसरा कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो सवाल का जवाब मुख्तसर और सादा अंदाज में आप यूं दे सकते हैं, ये पार्थेनोजेनेसिस इसलिए है कि इसमें फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व नहीं है, इसमें मेल और फीमेल गैमीट्स का मिलाप नहीं होता है, स्पर्म एग से नहीं मिल पाते हैं और स्पर्म के एग से मिले बगैर, फर्टिलाइज एग के बगैर, विदाउट फर्टिलाइजेशन एग ही तब्दील हो जाता है नए जानदार में। और इसकी एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ फिशेस में और फ्रॉग्स में और हनी बीज में ये अमल होता है। इसका जवाब आप यूं लिख सकते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है, एज देयर इज नो फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट्स, क्योंकि इसके अंदर फ्यूजन का अमल नहीं होता है। किसकी फ्यूजन? मेल गैमीट्स की। मेल गैमीट्स कौन है? स्पर्म्स हैं। और किसके साथ फ्यूजन होगी? फीमेल गैमीट्स के साथ, जो कि एग हैं। डियर स्टूडेंट्स, बेसिक कंसेप्ट है कि फर्टिलाइजेशन में स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं, मेल और फीमेल गैमीट का मिलाप होता है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए है क्योंकि यहां पर स्पर्म और एग नहीं मिल पा रहे, मेल और फीमेल गैमीट की फ्यूजन नहीं हो पा रही। ऑन द कंट्रास्ट, इसके बरक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन का अमल होता है। किसकी फर्टिलाइजेशन होती है? स्पर्म्स और एग की फर्टिलाइजेशन होती है। डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल का यह मुख्तसर जवाब है जो दे करके पेपर में लिख करके आप मुकम्मल नंबर हासिल कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 4,
लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इंतहाई कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इंतहाई तवज्जो के साथ स्टेटमेंट को दोबारा से एनालाइज कीजिए, ठंडे दिलो दिमाग के साथ, तसल्ली के साथ सवाल की स्टेटमेंट पर गौर कीजिए। सवाल पूछा गया है, स्केच द आउटलाइन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, एक ऐसा पौधा जिसपे फूल लगते हैं उसकी जिंदगी का खाका बयान कीजिए। अब इसमें दो तरह से आप इसका जवाब दे सकते हैं। एक तरीका क्या है? एक तरीका, सादा सा तरीका यह है कि आप अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के साइकिल को यहां मेंशन कर सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के जरिए से दो जनरेशंस आपस में एक्सचेंज होती हैं। एक जनरेशन स्पोरोफाइट जनरेशन है जिसका काम स्पोर प्रोड्यूस करना है और ये हैप्लॉइड जनरेशन है, जबकि दूसरी जनरेशन गैमीटोफाइट जनरेशन है और इसका काम गैमीट्स प्रोड्यूस करना है। डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था कि स्पोरोफाइट जनरेशन में मियोसिस का अमल होता है। स्पोर मदर सेल से दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, एक को हैप्लॉइड मेल स्पोर कहते हैं, एक को हैप्लॉइड फीमेल स्पोर कहते हैं, एक को माइक्रो और एक को मैक्रोस्पोर का नाम दिया जाता है। ये दोनों गैमीटोफाइट जनरेशन में तब्दील होते हैं और गैमीटोफाइट जनरेशन में गैमीट्स बनते हैं, मेल गैमीट बनते हैं, फीमेल गैमीट बनते हैं। ये माइटोसिस के अमल से बनते हैं और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं जाइगोट बनता है। जाइगोट की डेवलपमेंट होती है, वो एक मुकम्मल पौधे में तब्दील हो जाता है और पौधे की मेजर बॉडी स्पोरोफाइट बॉडी होती है जो कि इंडिपेंडेंट होती है, जबकि इसके ऊपर एक छोटी सी बॉडी फ्लावर की फॉर्म में गैमीटोफाइट बॉडी है जो कि स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट होती है। डियर स्टूडेंट्स, एक तरीका तो इसके जवाब देने का ये है और ये मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 5 में। इसके लिए आपको रिव्यू करना होगा लेक्चर नंबर 5। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप डबल फर्टिलाइजेशन की डायग्राम को, स्केच को यहां लेबल कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि निस्बतन थोड़ा एक्सटेंसिव मेथड है। उसमें आप लिख सकते हैं कि मेल और फीमेल पार्ट, एंथर और एंथर से निकलने वाला पोलन, जब वो बाहर निकलता है उसमें मियोसिस और माइटोसिस होती है, उसमें पोलन ट्यूब बनती है, स्पर्म न्यूक्लियस बनते हैं, स्पर्म न्यूक्लियस पोलन ट्यूब के जरिए से फीमेल बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, स्टिग्मा से स्टाइल, स्टाइल से ओवरी में जाते हैं, ओवरी से ओव्यूल में जाते हैं और एक स्पर्म एग से मिल जाता है, एक स्पर्म फ्यूजन न्यूक्लियस से मिल जाता है। ये दूसरा तरीका है कि जिसके जरिए से आप डायग्राम बनाकर ये आंसर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। आइए देखते हैं उस सवाल में क्या पूछा गया है और आपने उसका क्या जवाब देना है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? आइए स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट है, स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशंस इन विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। वो कौन सी बनावट में आने वाली तब्दीलियां हैं, वो कौन सी खसूसियात हैं कि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर को इस काबिल बनाती हैं कि हवा के जरिए उनमें क्रॉस पॉलिनेशन होती है। रिकॉल योर मेमोरी, हम डिस्कस कर चुके हैं कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन विंड के जरिए से होती है और पॉलिनेशन का अमल क्या है? रिकॉल योर मेमोरी, हम ये भी समझ चुके हैं पॉलिनेशन का मतलब पोलन का एंथर से निकलना है और स्टिग्मा पर मुंतकिल हो जाना है। दरअसल दूसरे अल्फाज में ये पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अमल है। डियर स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स यानी पॉलिनेशन, जो कि क्रॉस पॉलिनेशन का हम यहां पे जिक्र कर रहे हैं, ये एक टाइप है पॉलिनेशन की कि जिसमें एंथर से पोलन तो निकलते हैं, एक पौधे के एक फूल से निकलते हैं और उसी स्पीशी के किसी दूसरे पौधे के किसी फूल के स्टिग्मा पर मुंतकिल होते हैं। इस अमल में हवा मददगार होती है। वो कौन सी खसूसियात हैं जो इन पौधों को इस काबिल बनाती हैं कि हवा के जरिए से इनमें क्रॉस पॉलिनेशन होती है? आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। नंबर 1, स्मॉल साइज फ्लावर। वो पहली खासियत क्या है इन पौधों में? वो पहली खासियत ये है कि इनके फूल साइज में छोटे होते हैं और आसानी से उनके अंदर पॉलिनेशन का अमल हवा के जरिए से मुमकिन हो पाता है। नंबर 2, ग्रीन और डल पेटल। डियर स्टूडेंट्स, वो पौधे, वो फूलों वाले पौधे कि जिनके अंदर इंसेक्ट्स के जरिए से
क्रॉस पॉलिनेशन का अमल होता है उनमें तो पेटल्स का रंगदार होना फायदा पहुंचाता है, क्योंकि इंसेक्ट ने उनकी तरफ उन पेटल्स के खूबसूरत रंगों की वजह से मुतवज्जे होना है। लेकिन विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की बात की जाए तो उनमें फूलों की रंगों की खूबसूरती से कोई फर्क पॉलिनेशन पर नहीं पड़ता है, इसलिए इनमें जो पेटल्स होती हैं वो या ग्रीन कलर की होती हैं या हल्के रंग की डल कलर की होती हैं। नंबर 3, नो नेक्टर। डियर स्टूडेंट्स, इनके अंदर नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं होता बिकॉज नेक्टर की जरूरत ही नहीं है। नेक्टर की जरूरत विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के बरअक्स इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में होती है। नंबर 4, चौथी और अहम खूबी इनके अंदर यह है कि इनके फूल लटके होते हैं, ऊपर की तरफ नहीं खिलते बल्कि नीचे की तरफ हैंग्ड होते हैं, लटके होते हैं, हल्के फुल्के होते हैं, ताकि हवा के जरिए से आसानी से इनके अंदर से पोलन निकलकर एंथर से निकलकर स्टिग्मा पर मुंतकिल हो सके। नंबर 5, पांचवी खूबी क्या है? स्टेमन्स एंड स्टिग्मा हैंग आउट ऑफ पेटल्स रिंग। डियर स्टूडेंट्स, स्टेमन की बात की जाए या स्टिग्मा की बात की जाए, ये मेल और फीमेल पार्ट हैं फ्लावर के और इनके अंदर ही पोलन ने ट्रांसफर होना है। ये पेटल्स के रिंग से बाहर लटके होते हैं, इसलिए लटके होते हैं ताकि आसानी के साथ हवा के जरिए से इनका ट्रांसफर मुमकिन हो सके। ये इसलिए बाहर की तरफ अल्लाह ताला ने तरतीब दिए होते हैं। नंबर 6, छठी खूबी यह है कि इनमें जो पोलन ग्रेन्स हैं वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, लाइट इन वेट होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनमें जो मौजूद पोलन है तादाद में ज्यादा होते हैं, क्योंकि हवा के जरिए इन्होंने बिखरना है और जाया होने के इम्कानात भी मौजूद हैं। और दूसरी बात ये, साइज में छोटे होने की वजह, हल्के होने की वजह यह है हवा इनको आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सके। नंबर 7, स्टिग्मा हैव फीदरी ब्रांचेस टू कैप्चर पोलन्स। इनके अंदर जो स्टिग्मा है उनकी ब्रांचेस फीदरी होती हैं, परों जैसी होती हैं, जिसकी वजह से हवा आसानी के साथ इनको कैरी करते हुए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करवा देती है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज में दिए गए शॉर्ट क्वेश्चंस थे जिनको हमने यहां पर डिस्कस किया। कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इन तमाम सवालात को डिस्कस करने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम सवालात समझ आ चुके हैं। अगले मरहले में आपने इन सवालात को याद कर लेना है। अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।